एक्चुअली सारी दुनिया फायर नंबर ऊपर की तरफ बढ़ाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपना फायर नंबर नीचे घटाया। 5 करोड़ करने के लिए आपको जो महीने की स्टेप अप SIP चाहिए वो सिर्फ 23,000 रुपये है। किसी ने पैसा बनाया और आपने कॉपी करके बनाया तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसा बनाओगे। 90% of the people in the world are in a job where they're not enjoying the job. And that's why they want to achieve this fire number as soon as possible so that they can do whatever they wanted to do. How to calculate a fire number. Today, frankly, you can ask ChatGPT. I'm this age, this is my kharcha today. If I want to retire at time, what is a realistic fire number? That answer will be 90% closer to what number you're asking. What should be the plan at 45, 50 when you reach that number? Hello, folks. Welcome to this unique show. I'm Gajendra Kothari and also known as One Idiot. Today it's a very unique format. I have three gentlemen, all very youngsters, hoping to throw a lot of questions to me. I'm used to do a podcast in a one-on-one format, but today it's going to be very different. Real people, real case studies we are going to discuss. And the burning topic on this show is 1 crore enough in India to retire comfortably. Of course, 1 crore is a lot more amount, maybe for at least 90% of the population in our country. But is it really enough for the Gen Zs or the people who are in 20s or early 30s? कि अगर इतना हो गया तो is this enough for them? We will discuss, but first I would like to introduce my fellow guests on the show. So, आप, can you please introduce yourself? What's your name and how old are you and what do you do? Yeah, exactly. Hello, I'm Ganesh. I'm currently a working professional. I'm working with an AI team. How old are you? I'm exactly 22 years old right now. Just 22. Yeah. Wow. Hmm. I'm double than your age. So currently I'm so passionate about investing in stock markets. I want to learn the power of compounding at the early stage itself. You are at the earliest stage right now. At the early stage, I want to know the true power of compounding from the Absolutely. stalwarts like you, sir. You're so fortunate to be in this show. Exactly, sir. Thank you. Thank you for coming. Hello everyone, I'm Chirag Sanghvi. I am from tech background, but since last 3 years, I have a wealth management firm. So I've been investing since a decade now, and I've been following you and listening to your podcasts, and it's really wonderful insights that we get through it. So since I'm already into wealth management, the one thing that I always have is the fire number, like what we are going to discuss now. That's the reason I was very curious to meet you and get your insights into it. Absolutely. Thanks, Chirag. I also hope to learn a lot more from you because you also come from a similar background. So we will share unique experiences. Welcome to the show. Hi, everyone. My name is Samrit Goenka, and I am 26 years old. I currently work as an investment analyst at Neo Wealth Partners here in Mumbai. My curiosity in finance started since when I was in graduation, and then I learned about all the investment products. I'm a BBA and MBA in finance, and looking forward to this great conversation with sir. So that is, thank you. Thank you. Thank you so much. So, as you know, our topic for discussion is 1 crore enough? So first, quickly, I would like to get your views. Maybe 1 minute you want to share, each one of you want to share. Do you think this is a right number or this is a good number? Or if you don't, then what is your opinion of a number? I mean, I just, when you see the question in a glance, that is 1 crore enough. Especially today, living in a metro city, you feel like it's not enough. But then that second question comes, that how to identify your number, how to identify, since we are earning and going forward, we'll, by year start to earn more. How to eventually find that number that we are, comfortable living in. So I think that is what my view is. Great. But do you think it was for you? What is that fire number for you? अगर आपने कभी सोचा है तो. Actually, I think it should be at least 5 to 10 crores. But again, I think that would also depend on the primary income that I currently have, and going forward, what do I expect of myself? And then that number might eventually change a lot. But yeah. Absolutely. Chirag, Yeah, you- so just to the question, the answer would be, since I am born and brought up in Mumbai, I would say that 1 crore is really not enough. But it can, as you said, right, for 90% of the people, it's still a big amount. Now, considering what should be an ideal number for me, it's like there are it's a bit subjective. For me, it's like now I have a daughter and I know the educational expenses, and since I'm running all the expenses, how
different things evaluate. So I would say I don't have that number in my mind, but I would still say I'm nowhere close to that number. But I just want to learn from you that how to identify that number. I know that we will break this down into expenses, the lifestyle that we have, because this would be a subjective number. Yeah. And maybe after this podcast, I would be able to identify that fire number from. Fine number, absolutely. Ganesh, you are the youngest of all of us. What is your fire number? Because Ma- आप इतने सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, सीख रहे हैं, तो where do you want to achieve? So my point of view is enough is never enough. That's I heard a lot. According to me, what I never kept a figure, but I want my investment, my net worth to compound every year. That's the thing I only have in my mind. Even though I earn more in the coming days, my job switches and maybe something, I want my money to compound continuously Correct. with the raising inflation, raising expenses, my raising lifestyle. So I want it to compound, and I am so excited to know about the what figures may be suitable to live a good life in the future of in India. Mhm. So excited to know about with you, sir. Great. So, do you have any questions for me, at least on this topic? Anything that comes in your mind which you want to ask me? Yeah, so the basic one would be, how to identify that number Hmm. as a whole, right? So Correct. because I know my expenses, so if I sit down and today analyze that what should be my fire number, Correct. what basic things that I should take into consideration. Absolutely. So, Chirag, it's actually a very scientific exercise. It's a very there's we say there's a madness in the method. तो ये नंबर आप पता कर सकते हो और बहुत रियलिस्टिकली पता कर सकते हो. See, it's like your गूगल मैप्स. तो गूगल मैप में चाहे आपको यहाँ से चर्चगेट जाना हो, बॉम्बे से दिल्ली जाना हो, बॉम्बे से यूएस जाना हो, हर चीज़ का डिस्टेंस, टाइम, मोड ऑफ व्हीकल से पता चल जाता है कि कब पहुँचोगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल. हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आज की डेट में वो पॉसिबल है. छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है और ये कैलकुलेशन आज जिससे हम पता कर सकते हैं. बट चूंकि पर्सनल फाइनेंस इज़ मोर पर्सनल देन फाइनेंस, आपके लिए क्या नंबर होगा, इनके लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, सबके लिए बहुत अलग है, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड अलग रहा है. Right. हम सबकी अपब्रिंगिंग अलग रही है, हम सबकी एजुकेशन और लर्निंग्स अलग रही है, हम सबके एस्पिरेशंस भी अलग हैं. तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. इसको साइंटिफिक मॉडलिंग हम कर सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, बट एक्सपेंसेस आज जो है वो ज़रूरी नहीं है 5 साल बाद सेम रहेंगे, वो भी तो बहुत चेंज हो सकते हैं. Right. राइट, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकते हैं. तो ये एक मूविंग नंबर है, बट एटलीस्ट आज की डेट में आपको 90-95% पता चल जाता है. तो आपका जो डेविएशन होगा वो सिर्फ 5-10% होएगा, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि 1 करोड़ इनफ है या 5 करोड़. वो 5 करोड़ नंबर या 10 करोड़ नंबर का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. Correct. ये 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, किसी का कोई लॉजिक नहीं है नंबर का. तो वो राइट नंबर क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है. और वो राइट नंबर के लिए, फायर नंबर के लिए 2-4 चीज़ें चाहिए होती है कि आज जो स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं आप और आपके स्पाउस, राइट. सपोज जैसे मैं 45 ईयर ओल्ड हूँ, माई स्पाउस इज़ देयर, आई हैव 2 चिल्ड्रन. आज हमारा महीने का खर्चा बॉम्बे में मे बी 5 लाख हो सकता है पर मंथ, बट बिकॉज और मेरे पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, तो सब मिला के 5 लाख हो रहा है. बट 15-20 साल बाद मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ. तो फिर हम दोनों का खर्चा क्या होगा. अच्छा, आज हम जब 4 इतने जने हैं तो हम बहुत सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड खर्चा करते हैं, जो बिकॉज फैमिली, तो चलो आज यहाँ घूमने चले गए, वो चले गए. 20-25 साल बाद हम 2 ही जन हैं, तो हम कितना बाहर खाना खाएंगे, हम कितना बाहर घूमने जाएंगे, हमारी बॉडी सपोर्ट करेगी क्या, वो सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं. तो ये बहुत पर्सनल है. और तो मुझे ये देखना है कि अगर आज मैं और मेरे, सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन मैं अगर आपको बता सकता हूँ कि मैं और मेरे स्पाउस हैं, सपोज़ मेरा घर खुद का है, मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ. मैं आपको एक कैलकुलेशन रियल बताता हूँ, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग एक्सरसाइज कि हम, और उसमें मैंने ना 4 सिटीज़ लिए हैं, बिकॉज इंडिया एक नहीं है. Right. इंडिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ सिटीज़. सो सबसे पहले मुंबई दिल्ली की बात करते हैं. सपोज़ हमारा महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है अगर हम मुंबई दिल्ली में रहते हैं, जिसमें मैंने ये पकड़ा है हाउस होल्ड खर्चा 50,000 का, 30,000 का खर्चा लाइफस्टाइल हो गया, 20,000 का खर्चा वेकेशन हो गया,
या मिसलिनियस हो गया, तो 1 लाख रुपए का हमारा महीने का खर्चा है। और हम 30 साल के हैं आज की भी, 30 ईयर्स, और महंगाई 7% से ग्रो कर रही है। और फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर इज़ 50 एज 50। 50 की एज में इसका मतलब ये नहीं है रिटायरमेंट ले लेना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया। Right. नाउ वी आर नॉट रियली वर्किंग फॉर मनी Not dependent on और नॉट the डिपेंडेंट active ऑन मनी। employment. Yes. ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे। Right. तो आज जो 12 लाख रुपए का साल का खर्चा है, आज से 20 साल बाद, वी आर इन 2026, 2046 में 7% महंगाई से यही 12 लाख का खर्चा उस वक्त 46 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा इन 20 ईयर्स। The value of money. द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बोलते हैं, Exactly. 4 गुना बढ़ जाएगा। 12 लाख का 46 लैक्स, तो 50 में वो 46 लैक्स पर ईयर, और उसके बाद वो खर्चा 5% से बढ़ेगा। आज 7% से बढ़ रहा है, बट उस वक्त 5%, क्योंकि इंडिया डेवलप नेशन बन जाएगा, Right. महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। और रिटायरमेंट के टाइम पे अगर हमको 9% का रिटर्न्स मिलता है, 5% इन्फ्लेशन है, 9% का रिटर्न्स मिलता है, तो 4% हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना रहे हैं। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है, 50 to 35 प्लस 35 यानी 85 ईयर्स। Correct. तो 50 से लेके 85 तक हमारे पास एक कॉर्पस होना चाहिए जिसके कारण हमारा विड्रॉल हो सके। हमारी एक्टिव इनकम नहीं है तो भी हमारा हो सके। मुंबई जैसे सिटी में वो फिगर आता है 9.23 करोड़। Okay. एग्जैक्ट नंबर हम इसको राउंड ऑफ करके 10 करोड़ मान सकते हैं। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है जिसका साल महीने का खर्चा लाख रुपए का है, तो उसको 20 साल बाद उसके पास कम से कम 10 करोड़ के 10 आसपास करोड़ का चाहिएगा। Correct. ना 20 साल बाद 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि कहाँ से ये 10 करोड़ आएगा, बट 10 करोड़ आपको 20 साल बाद चाहिए, आज नहीं चाहिए। तो अगर हमको वो अचीव करने हैं, और हम मान लीजिए एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं जहाँ हमारा रिटर्न्स 10% आता है, हम हैं, तो आज से हमें लगभग महीने की 50,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। अगर हमको मंथली SIP करनी है तो हमको 1,21,000 की करनी पड़ेगी 20 साल For में अगर 20 हमको years. करना है। बट बहुत लोगों के पास 1 लाख रुपए की SIP करने का नहीं होगा, तो उनके लिए बेस्ट होता है स्टेप अप SIP। तो आज से अगर हम 57,000 या 60,000 की अगर हम SIP कर सकते हैं एट एज 30, सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, 60,000 की सेविंग है, अगर दोनों की इनकम मिला के 1.5-2 लाख रुपए है, 1 लाख खर्चा हो गया, 60,000 अगर हम SIP कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। हर साल हमको 10% से ये SIP को बढ़ाना है तो हो सकता है। ये तो हो गया मॉडरेट इन्वेस्टर जहाँ हम 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करें, बट 20 साल आपके पास है, आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हो। इमेजिन 12% का रिटर्न आता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो गेम चेंजर हो जाता है। जो आपको 1,21,000 की रेगुलर SIP करनी थी, वो फिगर 93,000 SIP पे आ जाता है, Okay. सिर्फ 2% एक्स्ट्रा रिटर्न से। और जो महीने की 57,000 स्टेप अप SIP थी, वो 47,000 पे आ जाती है, 12% रिटर्न। Right. ये हो गया मेट्रो सिटी यानी मुंबई, दिल्ली, मेजरली बता रहा हूँ मैं, जहाँ 1 लाख रुपया महीना का है। बट अभी जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो तो ज़रूरी नहीं है मुंबई दिल्ली में है, Right. राइट? वो हैदराबाद में भी रह रहा है। Yes, sir. तो अगर हैदराबाद में रह रहा है या मान लीजिए पुणे में रह रहा है, तो उसका जो महीने का खर्चा 75,000 रुपये है, तो उसका 9 लाख रुपया हो गया है। और उसको फिर रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिएगा, जो यहाँ लगभग 9.23 करोड़ चाहिए था, उसको 6.9 करोड़ यानी 7 करोड़। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, राइट? और उसको अगर वो एग्रेसिव है, मैं इसमें मॉडरेट नहीं पकड़ रहा हूँ, तो जो 47,000 हमने स्टेप अप पकड़ा था उसके लिए 35,000 हो जाता है। Okay. एंड फाइनली थर्ड सिटी मैं पकड़ता हूँ जिसमें बड़ौदा, ग्वालियर, Right. And this is step up of how much percent? 10% 10% एवरी step up. ईयर। हम ये मान के चलें कि 10% अगर हमारी अर्निंग्स बढ़ती है तो Got 10% हम SIP स्टेप अप भी कर सकते हैं। Right. 12 लाख रुपए महीना फॉर मेट्रो सिटी, Right. 9 लाख रुपया महीना फॉर Tier टीयर 2. 2, Tier 2. टीयर 3 के लिए 6 लैक्स, यानी ग्वालियर, भटिंडा वगैरह जैसे 50,000 सिटी per में है तो 50,000 पर मंथ। Right. वहाँ पे एक फ़ायदा क्या होता है, जनरली आपके पेरेंट्स के घर है, आप अगर वहीं रह रहे हो तो जनरली यू आर स्टेइंग विद द पेरेंट्स या कम खर्चा है। Right. तो अगर वहाँ 50,000 का है तो आपको 4.6 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, फायर नंबर। सो पहले केस में हमारा फायर नंबर था 9.23 करोड़, दूसरे केस में था 6.9 करोड़, Right. और 7 राउंड ऑफ कर देते Right. बिकॉज
ईजी रहता है। पहले वाले में आप 10 मान लीजिए, दूसरे वाले में 7 मान लीजिए, 7 तीसरे वाले में 4.5 4.6 या 5 भी कर 5 सकते हो। करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ करने के लिए आपको जो महीने की स्टेप अप SIP चाहिए वो सिर्फ 23,000 रुपये है। इतना बड़ा सिटी टू सिटी फ़र्क पड़ जाता है। एंड फाइनली जिस जगह से मैं आता हूँ, जोरहाट असम, जो टियर 4 टाउन हो गया, या फिर कोई भी हर जगह पे होंगे, नासिक तो नहीं कहूँगा महाराष्ट्र में, वो टियर 3 में आता होगा, टियर 4 उससे भी नीचे हो गया, तो वहाँ आपका साल का खर्चा, ये महीने का खर्चा आपका 25,000 का है और साल का खर्चा 3 लाख है। क्योंकि अगेन वहाँ उतनी कम पार्टीज होती हैं, उतनी कम आपके right. आउटडोर सोशल्स होते हैं, नहीं होता है। यहाँ हम एक मूवी देखने जाते हैं तो 1,000 2,000 3,000 का खर्चा हो जाता है, तो अच्छा। वहाँ उतना नहीं होता है। तो 3 लाख रुपए का मैंने पकड़ा है और उसके हिसाब से 2.3 करोड़ का फायर नंबर है ओके 20 साल बाद। और 2.3 करोड़ का फायर नंबर करने के लिए हमें आज से सिर्फ 12,000 रुपये की स्टेप अप SIP करनी है। तो स्टार्टिंग फॉर टियर 4 टाउन जहाँ 12,000 रुपये की SIP करनी, जो हर कोई, मुझे लगता है हर फैमिली कर सकता है। करेक्ट राइट कोई भी फैमिली हमारा पॉडकास्ट देख रही है, टियर 4 टाउन में है, 12,000 रुपये की फैमिली कोई भी SIP कर सकती है। और अगर वो करते हैं तो वो 2.25 करोड़ का फिगर पहुंच जाते हैं। और मुंबई में जो है उनको 50,000 की लगभग की SIP करनी, तो 12,000 से लेके 50,000 तक का वो SIP फिगर है। ये बहुत साइंटिफिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये नंबर चाहिएगा। हर 2-3 साल में आपको खाली रिव्यू करते रहना है। बेसिकली हम अगेन वो गूगल मैप में जा रहे हैं, तो हर हमको 1 घंटे का सफ़र है तो हमारे 10 मिनट बाद गूगल मैप खोल के देखते हैं, हम 2 मिनट आगे या पीछे ही दिखाता है, बट ब्रॉडली यू आर देयर। गेटिंग द बॉल पार्क तो यही वैसा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होएगा आपका। या एज एंड व्हेन द पैरामीटर्स चेंज तो थोड़ा सा आप उसको वो फॉर्मूला में करके करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट 90% यू आर देयर इन दैट रेंज। ये अगर आपको नंबर पता चल जाता है ना, देन यू प्लान एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये तो चलो एक फायर नंबर, और ये फायर गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे हम 30 के हों, चाहे 25 के हों, चाहे 35 के हों, किस एज पे हमें लेना है, 50 या 55 या 60, वो नंबर करके बैकवर्ड कैलकुलेशन करना ज़रूरी है पहले। और वो एक पैसा हमको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो नंबर ऐसा है ना कि उसमें आपको कोई लोन नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, वो आपको खुद को ही अरेंज करना पड़ेगा। फिर बाकी गोल्स, मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, फैमिली आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं बच्चों की प्लानिंग करनी है पहले, घर खरीदना है पहले। मैं बोल रहा हूँ ये सब बाद में भी हो सकते हैं, पहले आपका जो फायर गोल है, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम गोल है, वो आप नक्की करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो आज बिजनेस ओनर्स हैं, ये जॉब में हैं, वो ये सोच के चलें कि मैं अगले 25-30 साल भी ऐसे ही कमाते रहूँगा। हमें पता ही नहीं है कि इनकम हमारे हाथ में नहीं है। इनकम डिस्रप्शन हर जगह हो रही है, या तो जिसकी है उसकी बहुत बढ़ रही है अगर वो राइट साइड ऑफ द उसमें है, और नहीं है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में 90-10 रूल हो गया है। 10% ऑफ द पीपल आर मेकिंग 90% ऑफ द अर्निंग, 90% ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग। आप जॉब मार्केट में भी जाइए, 10% ऑफ द वर्क फोर्स इन द सेम कंपनीज मेकिंग 90% ऑफ द इनकम, 90% आर स्ट्रगलिंग। तो अब AI आने का दौर क्या होगा पता नहीं है। तो कम से कम ये फाइल नंबर आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि कल को नौकरी गई या आई बिकम रिडंडेंट, तो मेरे पास एक एक राइट पैसिव इनकम तो आएगी जिससे मेरा गुजारा निकल सकता है। ही कैन डू SWP ही कैन डू SWP और उसका खर्चा निकल सकता है। वो ट्रैवल नहीं कर सके या लैविशली नहीं कर सके, बट घर का खर्चा तो निकल सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप अपना फायर गोल पे ध्यान दीजिए। अब वो 50 में करना है, 55 में करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर बैकग्राउंड, हाउ डिसरप्टेड योर जॉब कैन बी, वो आप सोच सकते हो। इट कैन बी एज अर्ली एज 40 और एज लेट एज 60, but somewhere between 40 to 60 you should know your final, and that's why we took 50 as the age. मेरे टाइम पे जब हम प्लानिंग करते तो 60 का करते थे। आज के यंगस्टर्स वांट टू प्लान एट 50। वो लगता है 50 के बाद पता नहीं हमारी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो 50 में आ जाए तो हम फिर गिटार बजाएंगे खाली पैसा भी नहीं कमाएंगे तो चलेगा। बट ये गोल होने के बाद ही आपको आपके बच्चों के एजुकेशन का गोल सोचना चाहिए। ये गोल की प्लानिंग के बाद ही आपको हाउस परचेज का गोल सोचना चाहिए। और हाउस परचेज का गोल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाउस परचेज आपको पता नहीं आप किस सिटी में रिटायरमेंट लोगे, जॉब चेंज होते हैं, आपके बच्चे जहाँ गए, जिस सिटी में गए, जहाँ हुआ तो आप क्लोज़र होंगे ना। जैसे कल ही मैं मेरे एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं जोरहाट से आता हूँ, तो मेरे फ्रेंड के पापा जोरहाट रहते हैं, बच्चे तो बेटा बैंगलोर में काम कर रहा है। तो जैसे सही होगी तो फिर आप आसाम में नहीं रहोगे ना, आप बच्चे के पास ही आओगे, और बच्चा तो वहाँ नहीं आ सकता है, राइट तो आपको ही बैंगलोर जाना पड़ेगा। सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। तो फाइनली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि घर का गोल बाद में रखो, ताकि आप बार बार घर लोगे बेचोगे वो भी है। और घर जनरली आप
25-30 साल में काम करना शुरू करते हो, बिफोर 40-45 यू शुड नॉट प्लान टू बाय हाउस बिकॉज यू डोंट नो विच कंपनी, विच इंडस्ट्री, विच सिटी यू विल बी सेटलिंग इन. Right. आप बहुत सारे जॉब्स चेंज करोगे, Uncertainty. अनसर्टेनिटी रहती है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू Right. मूव विद हाउस ऑन. और हाउस का परचेज बहुत बड़ा परचेज है, तो अगर आपने लाइफ में जल्दी खरीद लिया ना तो इट ड्रेन्स यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर Depreciation. कैश फ्लो, सब कुछ उसमें यूज़ हो जाता है ना, तो आपके ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, प्लस मेच्योरिटी नहीं रहती है. तो इसलिए 40-45 तक कंपाउंडिंग करो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो. बच्चों का एजुकेशन गोल इज बिकमिंग अ बिग कॉस्ट आइटम, राइट. सी 2 एक्सपेंसेस मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा फास्ट ग्रोथ पे बढ़ रहे हैं. वन इज़ एजुकेशन एंड सेकंड इज़ हेल्थ केयर. बाकी सब चीज़ें इन्फ्लेशन से नीचे ही है, राइट. गाड़ी का कॉस्ट ले लो, Right. Right. ठीक है. अब हमारी लाइफस्टाइल बढ़ गई है तो हम 50 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं, बट 5 लाख की गाड़ी भी मिलती है, Correct. ओके. तो वहाँ इतनी बड़ी इन्फ्लेशन नहीं है. जो 2 जगह में इन्फ्लेशन है कि बच्चों की एजुकेशन की इन्फ्लेशन वाकई में बढ़ गई है और हेल्थ केयर, वहाँ चॉइसेस भी नहीं है. तो इसीलिए ये दोनों का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. बट बच्चों की एजुकेशन, ठीक है, वी मे वांट आवर चिल्ड्रन टू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया से बाहर भी, तो उसके लिए कम से कम एजुकेशन लोन पॉसिबल है. अगर आपने 5 नंबर अचीव कर लिया, सपोज 50 साल की उम्र में जैसे तैसे आपने फायर गोल ही अचीव किया है, या ज़्यादा से ज़्यादा फायर गोल प्लस हाउस गोल, अब आपके पास बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचा, राइट. और आपकी पता चल रहा है नौकरी भी डामाडोल है या बिजनेस भी खतरे में है. I wouldn't want you to touch your fire corpus or your house purchase to fund your education for child. The best thing I would do as a parent is, ठीक है, मेरा घर है, उसके अगेंस्ट मैं लोन ले Loan. सकता हूँ, एजुकेशन लोन एज ए गारंटर. मेरे बच्चों को बोलूँगा, बॉस मैंने ये लोन लेके तुमको पढ़ा रहा हूँ, जब तुम्हारी इनकम आना चालू होगी तो तो उसको तुम वहाँ repay से कर- तुम ही repay करो. कर सकते हो. अगर मेरे पास कुछ सेविंग हुई तो आई विल हेल्प यू, नहीं हुई तो डोंट डिपेंड ऑन मी. तो दैट इज़ द राइट थिंग. बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी वक्त अपना पीपीएफ का पैसा, ईपीएफ का पैसा सब यूज़ करके उसके लिए कर देते हैं, और फिर बाद में जब अचानक वो रिटायरमेंट हिट करता है, कुछ आता है, तो हमारे पास नहीं होता और हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और यू हैव टू देन आस्क योर चिल्ड्रन. सो दैट इज़ वाई दिस फायर नंबर एटलीस्ट in your mind has to be known very clearly. And when I say fire number, it's not just you and me. आप और आपके स्पाउस दोनों का इसमें बाय इन होना ज़रूरी है. पता चला एक मेंबर कम खर्चा करता है, आप कम खर्चा करते हो और आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर दिए, और सपोज आपकी स्पाउस ज़्यादा खर्चा करती है, Right. तो उनके लिए तो बोलेंगे ये क्या 12 लाख में कुछ नहीं होने वाला है. तो वो दोनों को साथ में बैठा के डिस्कशन करके वो नंबर पाओ, हर साल उस नंबर को रिव्यू करो, राइट. कोई जरूरी नहीं कि हर साल चेंज होगा, बट खाली रिव्यू करने से एक हमको अप्रॉक्सिमेटी पता चल जाती है. दिस इज द राइट वे टू नो योर फायर नंबर. देन माई होल आइडिया इज, एक बार जब फायर नंबर पता चल जाए, जैसे मेट्रो जैसे में 10 करोड़, तो 10 का ठीक है 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 का 50 नहीं होता है जनरली. ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल बढ़ी तो 12 हो गए, 15 हो गए, उतना डिविएशन चलता है, बट 10 का 25, 30, 50 जनरली नहीं होता है. बट बहुत लोग क्या करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग के हिसाब से करते हैं कि मुझे 50 बनाना है, हालांकि फायर नंबर मेरा 10-12 ही है, बट मुझे 50 बनाना है. देन जो एक्सेसिव नंबर आप बना रहे हो ना, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट मनी इज ओनली नंबर्स. आप उसको ना खर्चा कर पाओगे ना यूज़ कर पाओगे, और वो नंबर बढ़ाने के चक्कर में आज आप बहुत कुछ ट्रेड ऑफ कर रहे हो. Right. आज जो पैसों का आप हॉलीडे ले सकते थे Right. वो आप नहीं ले रहे हो. आज आप 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते थे, बट आप सोचोगे नहीं मैं 5 लाख की गाड़ी में काम चला लेता हूँ, बाद में मर्सिडीज़ दूंगा. एट 60 I'll buy मर्सिडीज़, तो उसको कोई मर्सिडीज़ खरीदने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा. दैट इज़ वाई दिस एक्सरसाइज ऑफ फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, कि कितना चाहिए. और बीच बीच में बाकी जो गोल्स हैं उसकी भी आप प्लानिंग करो, उसके हिसाब से वो जो प्लान में नंबर है उसके हिसाब से वो गोल का सेविंग करो, और जब वो गोल खत्म हो जाए तो गो एंड बाय दैट गोल, मतलब यूज दैट मनी टू बाय दैट फंड वॉट एवर यू वांटेड टू डू. सपोज आई ऑलवेज गिव, आपको मान लीजिए 5 साल बाद एज ए फैमिली आपको अलास्का क्रूज़ करना है, मान लीजिए 4 जनों की फैमिली का 15 लाख रुपए लगेगा, 5 साल बाद करना है, तो 5 साल के लिए 15 लाख रुपए का वो क्रूज़ का प्लानिंग करो, उसके लिए पैसे इकट्ठा करो. फायर गोल के बाद बचता है तो, राइट, और फिर वो क्रूज जाके आओ, राइट. तो दैट इज अ सेंसिबल वे टू डू, विच मीन्स यू आर एंजॉइंग टुडे ऑल्सो. Right. नहीं तो बहुत सारे, देखो क्या होता है, व्हेन यू आर 25 यू ऑलवेज हैव अ स्पेंडिंग प्लान, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बाइक खरीदनी है, मुझे यहाँ घूमने जाना है. यू हैव नो सेविंग्स प्लान. मैं पूछूंगा सेविंग्स, बोलता है नहीं है, कुछ भी नहीं है. और 50 तक हमारे पास
हम फिर 50 तक आते आते ऐसा हो जाता है कि वी ऑलवेज ओनली हैव सेविंग्स प्लान, वी डोंट हैव स्पेंडिंग प्लान। Right. हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो 50s में और जिनका डिसेंट वेल्थ है, हम थक जाते हैं कि उनको खर्चा करवाएं, बट वो करते ही नहीं है, Basically opposite हो रहा है. ऑपोजिट हो रहा है, राइट? Right. At 25 you should have a savings plan also, Right. and at 50 you should also have a spending Spending plan. plan. Spending plan. वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस कहाँ से आता है? इफ़ यू हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्लान। वो प्लान नहीं होएगा ना, तो हम खाली रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, हम खाली फायर नंबर, रैंडम फायर नंबर की बात करेंगे, मुझे 25 करोड़ चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक्चुअली सारी दुनिया फायर नंबर ऊपर की तरफ बढ़ाती है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपना फायर नंबर नीचे घटाया। तो जो मान लो कॉर्पोरेट लाइफ में 25 लाख रुपए कमा रहा था और उसके खर्चे मान लीजिए 20 लाख 15 लाख के थे, उसने अपने खर्चे डाउन साइज कर ली। बट इसे मुझे अब स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे लाइफ ईजी जीनी है, मैं कम काम करूँगा, ये काम करूँगा बट स्ट्रेस के लिए नहीं करूँगा, भले ही मेरी इनकम आधी हो जाए, मैं अपने खर्चे आधे करूँगा। मतलब मैं अगर आज यहाँ रह रहा हूँ तो मैं सिटी के एकदम आउटस्कर्ट रह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, वहाँ घर का कॉस्ट भी कम है, सब कुछ कम है, एंड इज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी। Right. वो कॉल लेना बहुत मुश्किल है, Trade-off. 100 में से एक आध करवाता है। यानी आज आप सपोज, मैं मुंबई से नहीं हूँ ओरिजिनली, बट मैं मुंबई आया, विजन जो भी आप ले लो, बट यहाँ का ट्रेड ऑफ अलग है, खर्चे हायर हैं, भागना पड़ेगा, स्ट्रेस हाई है। बहुत लोग बाहर से मुंबई से आए हैं, बट वही कई लोग खासकर कोविड में ऐसा हमने देखने मिला है कि बोला कि मैं यहाँ की स्ट्रेस नहीं ले सकता, कोविड इज़ अ गुड रीसेट, लेट मी गो बैक टू माई होम टाउन, आई विल नाउ लिव देयर, वर्क फ्रॉम देयर एंड एंजॉय माई लाइफ। तो आपने आपका लाइफ Fire number reduce कर लिया. फाइन नंबर रिड्यूस कर लिया, Right. तो अब आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया, Right. काम भी उतना ही करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ लाइफ। दैट रियलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Basically choosing your own lifestyle. Yes. Edging. So fire is not just about number. It is about the kind of quality of life also you want to live. वो डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, एंड वो सारा डिस्कशन के लिए यू एंड योर स्पाउस बोथ हैज़ टू बी Right. पार्ट ऑफ द डिस्कशन, बोथ हैज़ टू अग्री टू द डिस्कशन। अगर दोनों में अलाइनमेंट नहीं है ना, तो फिर वहाँ भी वो chaos होगा। Definitely. तो it's not one person's number actually. Right. So next thing is you have mentioned a good story on debt. Like when a child education is coming up, we can manage that using debt. But as a young professional, debt always seems to be a dangerous instrument to me. That's something making my bag heavy on the back. So what are the circumstances where we can take the debt and leverage? Correct. Good What are the question. things we should avoid? Yes. So debt is always has been kind of a negative word in our society. Exactly. Culture. Our parents always warned us against debt, and rightfully so. Debt is a reverse compounding, right? Debt is like a double-edged sword. Exactly. It can be good also, it can be bad also. Yeah, I hear a lot of companies taking debt to leverage the Correct. profits. Yes. So first thing with debt is, if you have debt on your head, and if it is disturbing your sleep at night, then no matter at what cost, you should try and finish your debt as fast as possible. Returns, SIP बाद में करेंगे, बट अगर वो डेट से नींद नहीं आ रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग खाली योर नींद, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, अगर उनकी नींद नहीं आ रही है, तो इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग इट। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, योर वाइफ एंड योर फैमिली। सपोज आपके पेरेंट्स रोज़ आपको बोलते हैं, अरे डेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैंने बोला था ये इसको पे ऑफ करो, और उसके कारण वो स्ट्रगल हो रहा है। You might be smart, you might be saying नहीं मेरा पैसा बढ़ रहा है, but your father is not able to sleep because इतना बड़ा डेट है आपके ऊपर, तो वो it's not worth at any cost of returns. Yes, health is important. Family's health is important, not just Exactly. your health, Exactly. because then you're also suffering if your father is not happy. So as a family, if you are not okay to continue debt, then try and pay off the debt. Saving बाद में कर लेंगे, but if it is emotionally fine with you, कि ठीक है, as long as I'm earning more than 7%, my cost of debt is 7%, by investing in mutual funds or stocks or wherever I'm earning more than 8, 9, 10, 11%, और मैं assets बना रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं खर्चा करके ख़त्म कर दिया, तब ठीक है, कल को जॉब चली गई तो फिर डेट कहाँ से दोगे? But I am not paying the debt, I am building assets parallelly, which means tomorrow at any point of time, if I want to clear my debt at one go, I can do it. So why should I clear debt today if I'm smart? Correct. So that is the other side, but that would always come secondary compared to first option. First is always peace of mind.
सेकेंड इज द फाइनेंस साइड ऑफ डेट. बट डेट 8% पे और आप एफडी कर रहे हो इधर 7% पे, देन इट्स नॉट ए स्मार्ट चॉइस एनीवेज. Exactly. देन यू शुड पे ऑफ द डेट. बहुत लोग डेट 7.5-8% पे चल रहा है और इधर वो पीपीएफ का कॉर्पस 50 लाख का पड़ा है, उसको तोड़ेंगे नहीं कभी फॉर सम रीजन. क्यों? वो मेरा रिटायरमेंट क्या है. 8% आपका डेट है, 7% पीपीएफ दे रहा है. इट इज़ नॉट एट ऑल सेंसिबल. आप वो पीपीएफ तोड़ के डेट को क्लियर करो पहले. Right. वो नेगेटिव इक्विटी है, बट वो नहीं समझ में आता हमको, क्योंकि मेंटल बकेटिंग करके रखा. हम्म। पीपीएफ मतलब मेरा रिटायरमेंट का पैसा. डेट तो मैं ईएमआई से ही दूंगा मेरा, भले ही 10 साल और लग जाए. दैट्स नॉट सेंसिबल. दैट इज वेयर दिस एडवाइस, वैल्यूबल एडवाइस कम्स. One more thing is, currently we are talking more about working professionals in metro cities and these things. So I'm from a small village background. Most of the people are dependent on agriculture there. So these mutual funds, these assets, equity assets, they have no penetration there. Correct. Nobody invests there. So what are the instruments they can leverage to achieve their financial goals? Understood. So see what happens, because there is very less financial literacy there. Exactly. First we'll have to do a lot more work, because whatever you're saying, recently I received a call from a chili trader in Guntur. Oh, my place. Your place? I'm Okay. from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. So in Guntur area there are a lot of chili growing region. Exactly. And it was a very interesting conversation. That person didn't know Hindi or English. Yeah, Okay. like me. Okay. Not like me, I know. So he saw my podcast from somewhere, and he was not very fluent in talking. He could understand, but he was not very. So he invited his friend to be the mediator in that conversation. So we were having live conversation over Zoom, and his friend was there. He says, "I'm here because my friend wanted me to be here so that he can communicate to me what he want to share." His first request was, "Sir, आप ये खाली हिंदी और इंग्लिश में करते हैं, आप ये आपके सारे पॉडकास्ट रीजनल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं बनाते हो? बिकॉज मेरे गांव में ऐसे 200 लोग हैं जिनको ये समझना है, बट ये हिंदी और इंग्लिश में इसलिए समझ नहीं पाते. तो आप अगर रीजनल लैंग्वेजेस में बनाओगे तो कितना हेल्प होएगा." जरूर. So as a financial community, I think we all should make or convert. Now thanks to AI, we can actually convert this into regional sir. languages. The biggest thing is to bring up the financial literacy in our country. 2004 में जब मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन किया, आई वुड क्लियरली से 2% ऑफ इंडिया was financially literate. I'm talking about 22 years back. Mutual funds का AUM was 1 lakh crore. Today 80 lakh crore. Right. Yes. So पता चलता है आज. I don't have to explain you about SIP. All of us in this room know, right? But back then nobody was knowing. But the same thing if you have to explain to somebody in your village, so we need to talk in that language. And financial literacy is the only way we can bridge this. And one, of course, way is podcast or the way we are doing. But the biggest way is if we all become brand ambassadors. So suppose you are an investor, and if you have benefited from this, you will go and tell 5 others कि आप ये क्यों नहीं करते, आप भी ये करो. When those 5 people benefit, they go and tell other 5 people. Yeah. That's how the chain spread, right? Chain. So that is the biggest marketing is word of mouth. If a product is good and if it is spread by others, then everybody help each other. Right. So आज I'm sure at least the least we can do is हमारे घर में हम कर रहे हैं. In our house we have driver, we have maid servants. We know that this is right for them. तो हम उनको तो बोल सकते हैं कि 2,000 रुपये मैं कम दूंगा और आपका सैलरी का मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि आपका रिटायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं हो. Right. And इसमें sir, I think one thing which is more assuring is कि you always talk about mutual funds, where I am giving money to an expert fund manager who is managing stocks or who's managing the markets and making changes according to his discretion. I have just given money to someone who is 10, 15 plus experience. Correct. So when you give someone who is owning mutual funds, like who manages a mutual fund, then your money is most likely safe. It won't decrease, at least if won't increase in any case. So you are on the safer side only. And if you give it time, give it investment, and you stay invested enough, Correct. you will eventually, I think, meet that Absolutely. number. मतलब if you don't see, there is a wonderful saying, if you don't know the jewelry, know the jeweler. Right. Warren Buffett used say. तो आपको हर चीज़ आना पता नहीं है, बट एटलीस्ट इफ़ यू नो द ज्वेलर. सो आपको अगर इन्वेस्टिंग नहीं आती है, ओके, तो आप डायरेक्ट शॉक्स मत करो. जैसे आपने जेनसोल इंजीनियरिंग बताया, Mhm.
तो आप किसी ने पैसा बनाया और आपने कॉपी करके बनाया तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसा बनाओगे. इफ इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, गो टू प्रोफेशनल पर्सन, whether he's an advisor or whosoever he is, you know, because ये जो इन्वेस्टिंग का गेम है आप खुद से नहीं कर सकते हो. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी और उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डाउट आएंगे, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड इन दीज नंबर्स यू कांट अफोर्ड टू गो मैसिवली रॉन्ग, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि ठीक है चैट जीपीटी है, सब कुछ है, वो हेल्प कर देगा, बट देर आर मेनी क्वेश्चंस विच यू वांट टू नो the answers which you can discuss with someone, your friend who you trust. So you have to go to some professional, okay? And then you have to have patience. ये इतना लॉन्ग में ये कल रिजल्ट नहीं आने वाले, Right. So you have to trust the process. You have to have patience, discipline. It's culmination of all of this. आज हम अपने बच्चों को 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वो एक सेमेस्टर में पास अप नहीं बन जाता इंजीनियर, उसको 4 साल का मेहनत करना पड़ता है, इतने सीरीज ऑफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है. तो हर चीज़ कुछ भी अच्छा करना, कुछ बड़ा गोल अचीव करना है. 10 करोड़ का फिगर इज़ नॉट स्मॉल. टाइम 20 साल देना पड़ेगा, brick by brick. ब्रिक बाय ब्रिक बनाना पड़ेगा. Right. That's very important. सर जैसे आपने कहा कि you have been into markets or mutual funds in so long. I think you are a veteran now, I would say so. So ऐसा कोई गलती है जो जैसे आपने भी की होगी, काफ़ी गलतियों से सीखते हैं, तो something that you would recommend young investors not to do that mistake or something like that you feel was one of the mistakes that you have done that you should have the- avoided? 2 mistakes I would say. First is try to have your spending less than your earning. Okay. थोड़ा सेव करने का हैबिट होना चाहिए, राइट? 24 से लेके 30 तक मेरा सेविंग कुछ भी नहीं था ज़्यादा. Okay. मतलब पहला 2 साल तो कुछ भी सेविंग नहीं था, फिर थोड़ा सेविंग हुआ तो मैंने सब एफ&ओ में ख़त्म कर दिया था. तो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ ट्राई टू सेव समथिंग. अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो यू आर मच बेटर देन मेनी अदर पीपल हु कांट इवन सेव. हम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ का सुनते हैं जो जिनका स्पेंडिंग लाइफस्टाइल खर्चा इतना होता है एंड देन बाद में कुछ भी नहीं बचता है, तो वो फिर वो मतलब नहीं है, राइट? तो सेव मोर देन यू कैन स्पेंड एटलीस्ट, दैट्स द फर्स्ट. देन स्टार्ट अर्ली. भले ही आप 5,000 रुपये सेविंग कर रहे हैं पर मंथ, छोटा है चलेगा, बट आपने स्टार्ट किया. द कॉस्ट ऑफ डिले कैन बी डिवास्टेटिंग. तो मैंने 30 साल में शुरू किया, अगर आप 22 में कर सकते हो, यू हैव 8 years ऑफ रनवे मोर देन मी, एंड 8 years इज अ Big time. बिग टाइम. early time. इट कैन मेक और ब्रेक इन अ बिग वे. वो आपको आज पता नहीं चलेगा, जब आप अपना नेटवर्थ 50 में कंपेयर करोगे, 58 में कंपेयर करोगे ना, तो रात दिन का फ़र्क दिखेगा. तब आपको उस वक्त 8 साल का वैल्यू का पता चलेगा कि काश सर ने Yes, बोला sir. था 22 में शुरू करना. True nature of compounding. Correct. That is second. And third is don't be too greedy or too fearful. हम लोग सब वही मिस्टेक कर जाते हैं ना. Either we want to become rich fast, Right. सब कुछ आज ही कमाना है, तो don't be too greedy or too fearful. Markets are never bipolar. In the long term, everything reverts to me. तो वो चीज़ का ध्यान रखना है. सो ये 2-3 मिस्टेक से अगर आप बचोगे तो जो भी मार्केट ने एवरेज रिटर्न दिया वो आप बना लोगे. Well, Yeah. So any more questions, guys? I think that is another. It was a wonderful conversation with you, sir. Yeah. Thank Going you. very insightful. Very insightful. Thank you. and I thoroughly enjoyed this as well. I think this is a very deep conversation to know exactly कि हमें हमारा फायर नंबर क्यों पता होना चाहिए. By the way, you should never compare your fire number with others. Right. आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तब, right? Because each one of our life journey is different. I cannot compare your chapter 3 to my chapter 11. So it is always personal. Again, you have to discuss with your family what's your fire number. It's not an individual number. And find एक बार जब वो नंबर आ जाए, work towards it. ज़रूरी नहीं कि आज आपके सारे पैसे हैं डालने के लिए, but at least you should know, उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा के कि I'm working towards this goal. 2 साल आगे पीछे अचीव होगा वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट यू आर देयर. अगर आप प्लान ही नहीं करोगे, गोल ही नहीं बनाओगे, तो यू डोंट नो वेयर, व्हाई यू आर वर्किंग, व्हेन, हाउ मच इज इनफ फॉर यू. Right. So the whole idea of understanding this fire number is how much is enough for me enough for me. and when I do need to stop and enjoy life. Thank you so much. Alright. Pleasure Thank you so having much. conversation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.